हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इंट्रोडक्शन, ट्राइंगल, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स, मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, पाइथागोरस थ्योरम। नाउ इंट्रोडक्शन. In the previous class, we have studied triangle and its various types based on angles and sides. Here, first we will revise the concepts already learned by us and then we'll extend our study further. Now, triangle. A closed figure made by joining three known collinear points is called triangle. It is denoted by a symbol this. ये हमारा ट्राइंगल का क्या है? सिंबल. लाइक ट्राइंगल ABC, लाइक दिस A, B and C. It is denoted by a symbol this. We can also define it as a polygon bounded by three line segments. It has 6 elements, that is 3 sides and 3 angles. Now, parts of a triangle. Consider a triangle ABC. Vertices A, B and C are 3 vertices of triangle A, B and C. Vertices A, B and C. Now next is sides. AB, BC and AC are the 3 sides of triangle ABC. Angles angle ABC, ACB and angle BAC are the 3 angles of triangle ABC. The side opposite to vertex A is BC, the side opposite to vertex B is AC and the side opposite to vertex C is AB. Now, classification of triangles. Triangles can be classified on the basis of sides and angles. First, on the basis of sides. Triangles are of 3 types on the basis of their sides. First is scalene triangle. A triangle having 3 sides of different lengths is called a scalene triangle. Now, isosceles triangle. A triangle having 2 sides of equal length is called an isosceles triangle. Now, equilateral triangle. A triangle having all the 3 sides of equal length is called an equilateral triangle. Now, second, on the basis of angles. Triangles are of 3 types on the basis of their angles. First is acute angle triangle. A triangle having all the angles less than 90 degree is called an acute angled triangle. Now, right angled triangle. A triangle having one of its angle as 90 degree is called a right angled triangle. Now, obtuse angled triangle. A triangle having only one angle greater than 90 degree is called an obtuse angled triangle. Now, next topic is median of a triangle. The line segment that joins the vertex of the triangle to the midpoint of its opposite side is called a median of the triangle. Like vertex 1 से क्रॉस करते हुए D पे BC के मिड में जो मिली, that is AD is the median. In the adjoining figure, the line segment AD drawn from vertex A joining to the midpoint of BC is called the median of triangle ABC. Since a triangle has 3 vertices and 3 sides opposite to each of the vertex, so for each vertex there is a median of the triangle. Hence, a triangle has 3 medians.
In the adjoining figure, AD, BE and CF are the three medians intersecting each other at O. The point where the three medians meet is called centroid, which lies inside the triangle. Therefore, O is the centroid of the triangle. Now next is altitude of a triangle. The perpendicular line segment drawn from the vertex of the triangle to its opposite side is called an altitude of the triangle. In the adjoining figure, the perpendicular AD drawn from vertex A to opposite side BC is called the altitude of triangle ABC. ये AD. From each vertex of the triangle, an altitude can be drawn. Thus, each triangle has three altitudes. The point where these altitudes intersect is known as orthocenter of the triangle. It may lie inside, outside or on the triangle. Let us observe the given figure carefully. We find that in an acute angle triangle, orthocenter lies inside the triangle. In a right angle triangle, it lies on the triangle, and in an obtuse angled triangle, it lies outside the ट्राइंगल. यहाँ पे देखो हमें तीन तरह की ट्राइंगल्स गिवन है. एक्यूट एंगल ट्राइंगल में जितने भी हमारे एल्टीट्यूड हैं वो हमारे सेंटर कहाँ पे, ट्राइंगल के इनसाइड पे हमारा जो है ऑर्थो सेंटर है. ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है तो जो हमारा ऑर्थो सेंटर है वो किस पे है, ऑन ट्राइंगल. ये हमारी ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, यहाँ जो हमारा ऑर्थो सेंटर है वो हमारा कहाँ है, आउटसाइड द ट्राइंगल. Now next is relation between medians and altitudes of a triangle. First, in an equilateral triangle, the medians and altitudes are same. Second, in an isosceles triangle, only the median to the base and altitude to the base are same. Number 3, the rest medians and altitudes of an isosceles triangle and all the medians and altitudes of a scalene triangle have no relation. Now next topic is angle sum property of a triangle. If we measure the three angles of a triangle, we find that their sum is equal to two right angles or 180 degree. That is, for a triangle ABC, angle A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. हमारे ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री. दिस फैक्ट इज नोन एज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल विच इज स्टेटेड एज द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू वेरीफाई द अबव प्रॉपर्टी. ड्रॉ अ ट्राइंगल, ट्रेस टू कॉपीज ऑफ इट एंड कट दैम आउट. हमने एक ट्राइंगल क्या की, यहाँ पे ड्रॉ की और उसकी दो कॉपीज फर्दर ड्रॉ की. नाउ अरेंज द कटआउट सो दैट द वर्टेक्स ऑफ थ्री एंगल्स, दैट इज एंगल 1 फ्रॉम फर्स्ट ट्राइंगल, एंगल 2 फ्रॉम सेकेंड ट्राइंगल एंड एंगल 3 फ्रॉम थर्ड ट्राइंगल lie at one point as shown in the given figure. Avoid overlapping of angles one over the other. We see that angle 1, angle 2 and angle 3 together make a straight angle. हमने क्या किया, एक ट्राइंगल बनाई, उसके दो कटआउट्स लिए. हमने उनको इस तरह से लिया कि फर्स्ट ट्राइंगल का एंगल 1 यहाँ पे लिया, ये एंगल 2 और ये एंगल 3. जब हमने तीनों को एक साथ क्या किया, ज्वाइन किया, तो देखा ये तीनों एंगल्स मिलकर क्या बना रहे हैं, एक स्ट्रेट एंगल. और स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का. एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. दैट इज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C. जो हमारा एंगल 1 है वो हमारा एंगल A है, जो हमारा एंगल 2 है वो हमारा एंगल B है, जो एंगल 3 है दैट इज अवर एंगल C. तो इस तरह से हमने देखा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. Hence, the sum of the angles
of a triangle is 180 degree. Now let us prove it theoretically. Given, क्या given है? Consider a triangle PQR. To prove, हमें क्या prove करना है? Angle P plus angle Q plus angle R is equals to 180 degree. Now construction. Draw a line segment XY through P parallel to QR. हमने क्या किया? एक XY लाइन को ड्रॉ किया जो हमारे पैरेलल है QR पे, राइट? QR के पैरेलल है और कहां से? P पॉइंट से, राइट? प्रूफ क्या करना है? सिंस XY इज पैरेलल टू QR, सो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 5. हमारा एंगल 2 एंगल 5 के इक्वल है. क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. जब दो पैरेलल लाइंस को कोई थर्ड लाइन ट्रांसवर्सल कट करती है तो ऑल्टरनेट जो एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स, वो इक्वल होते हैं. तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 5 एंड यहाँ पे एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4. दिस इज ऑल्सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. On adding 1 and 2 we have, हमने क्या लिया? एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5 प्लस एंगल 4. नाउ ऑन एडिंग एंगल 1 टू बोथ साइड्स, हमने क्या किया? दोनों साइड एंगल 1 को ऐड कर दिया. तो हमने जब दोनों साइड एंगल 1 को ऐड किया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4. तो जो हमारा एंगल 1 प्लस 5 प्लस 4 बन रहा है, ये हमारा क्या बन रहा है? लीनियर पेयर. क्या बन रहा है? एंगल 5 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. दैट इज अ लीनियर पेयर. जब हमारा ये 180 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. और एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. Hence, the sum of the angles of a triangle is 180 degree. Now, try these. Write T for true and F for false. First, a triangle can have two right angles. No, it's false. कितना होता है? Only one. तो इसी तरह से बाकी की स्टेटमेंट आप खुद पढ़ेंगे और देखेंगे कौन सी राइट है, कौन सी रॉन्ग. नाउ एग्जाम्पल. In a triangle PQR, angle P is equals to 30 degree, angle Q is equals to 45 degree. Find angle R. What kind of a triangle is triangle PQR? Solution करते हैं इसका. In triangle PQR, अभी हमने क्या प्रूव किया कि तीनों एंगल्स का टोटल कितना होता है? 180 डिग्री. सो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. दैट इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. एंगल P कितना गिवन है? 30 डिग्री. तो एंगल P की जगह हमने क्या लिखा? 30 डिग्री. एंगल Q कितना गिवन है? 45 डिग्री. तो वहां पे हमने कितना लिखा? 45 डिग्री. हमें एंगल R को फाइंड आउट करना है. तो एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. 30 प्लस 45 कितना हो गया? ऐड किया, दैट इज 75 डिग्री प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब हमें एंगल R की वैल्यू निकालनी है. तो 75 क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड जाएगा. इधर ये प्लस हो रहा है तो अपोजिट साइड जाके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस में हो जाएगा. तो कितना आया? 105 डिग्री. और 105 डिग्री क्या है? 90 डिग्री से बड़ा. तो ये कैसी ट्राइंगल है? ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल. हेंस ट्राइंगल PQR is an obtuse angled triangle. Now, next example. In triangle ABC, if 3 times angle A is equals to 4 times angle B is equals to 6 times angle C, calculate the measure of triangle A, B and C. Solution देखते हैं इसका. Let 3 times angle A is equals to 4 times angle B plus 6 times angle C is equals to X. ये तीनों इक्वल दे रखे हैं तो हमने इनको किसके इक्वल रख लिया? X के इक्वल रख लिया. देन एंगल A, तो एंगल A की वैल्यू कितनी है? X अपॉन 3. एंगल B कितना है? X अपॉन 4. सबको X के इक्वल रखा ना. एंगल C कितना आया? X अपॉन 6. सारे मल्टीप्लाई हो रहे तो अपोजिट साइड जाके X के क्या हो गए? डिवाइड हो गए. नाउ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये हमारा प्रूव्ड है. दैट इज द एंगल सम प्रॉपर्टी. अब हमारा एंगल A की वैल्यू क्या है? X बाय 3. एंगल B की वैल्यू कितनी है? X बाय 4. एंगल C की वैल्यू कितनी है? X बाय
6 दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमने वी टेक द एलसीएम, हमने 3, 4 एंड 6 का क्या लिया, एलसीएम लिया, दैट इज 12। 3 4 जा 12, 4x, 4 3 जा 12, 3x, 6 2 जा 12, 2x। ऐड कर देंगे और 12 अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ऐड किया 4x प्लस 3x प्लस 2x अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 4 प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 12। जो हमारा एलसीएम है वो अपोजिट साइड जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। x की वैल्यू निकालेंगे तो 9 क्या है इधर, मल्टीप्लाई हो रखा है, अपोजिट साइड जाके क्या हो गया, डिवाइड। 9 से कैंसिल करो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 20 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आई, 12 2 जा 240 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आई, 240 डिग्री। सो एंगल ए क्या था, x अपॉन 3, x की वैल्यू कितनी है, 240 डिग्री, 240 अपॉन 3, 3 8 जा 24 और 0 एज इट इज। तो एंगल ए कितना आया, 80 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल्स टू x अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 6 0 60, 60 डिग्री। एंगल सी क्या है, x अपॉन 6, 6 4 जा 24, 0 एज इट इज, कितना आया, एंगल सी इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, in the given figure find the sum of the angles EAB, ABC, BCD, CDE and DEA। हमें एक फिगर गिवन है, ठीक है, और इसमें हमें क्या निकालना है, एंगल EAB, एंगल EAB ये एंगल, एंगल ABC दिस वन, एंगल BCD, एंगल CDE और एंगल DEA, राइट। अब हम सॉल्यूशन करते हैं, कैसे करेंगे देखो। मेक द एंगल्स एज शोन, देन एंगल EAB प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BCD प्लस एंगल CDE प्लस एंगल DEA दैट इज इक्वल्स टू, हमने क्या किया, हमने ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर लिया। यहां से इसको, यहां से ये ऑलरेडी इन्होंने क्या कर रखा है, एंगल्स को, पूरे जो शेप है इसको ट्रायंगल्स में। अब हमारा क्या है, एंगल 7 8 और 9। पहला हमारा क्या है, EAB, एंगल EAB, EAB एंगल हमारा किस किस से मिलके बना है, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 7, राइट, प्लस एंगल ABC, ABC हमारा क्या है, एंगल 8। फिर हमारा BCD, 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 CD किससे बनकर मिलके बना है, एंगल 5 प्लस एंगल 9। नेक्स्ट एंगल हमारा एंगल 6 प्लस एंगल 2 और E एंगल हमारा किससे है, एंगल 3। ये हमने कर लिया। अब हमने क्या किया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 9। हमने क्या किया, हमने ट्राइंगल्स के अकॉर्डिंग इनको क्या कर लिया, एक साथ कर लिया। जैसे इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ADE में एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180 डिग्री, एंगल 4 प्लस 5 प्लस 6 इज 180 डिग्री, एंगल 7 8 9 इज 180 डिग्री। नाउ कलेक्ट एंगल्स ऑफ द 3 ट्राइंगल्स टुगेदर। हमने क्या किया, तीनों ट्राइंगल्स के एंगल्स को टुगेदर कलेक्ट कर लिया। फिर हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल EAD प्लस एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ACD प्लस एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ABC। तीनों का क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तीनों 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री ऐड किया, दैट इज 540 डिग्री। तो इसके सारे एंगल्स का सम कितना हुआ, 540 डिग्री। तो बच्चों इस तरह से एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। Now next topic is exterior angle of a triangle. An exterior angle of a triangle is formed when a side of the triangle is extended. In the given figure, angle ACD is the exterior angle of the triangle formed by extending the side BC to D. Angle ABC and angle BAC are interior opposite angles
and angle ACB is the interior adjacent angle of exterior angle ACD. इसमें हमने क्या किया, हमने ट्रायंगल ABC में BC को D तक एक्सटेंड किया और इसका जो एक्सटीरियर एंगल बना दैट इज ACD, और इसके सामने का एंगल CAB और एंगल ABC ये दोनों क्या है, इसके अपोजिट एंगल्स, और एंगल ACB ये हमारा क्या है, इसका एडजेसेंट एंगल. एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. इसने क्या कहा है, एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अपोजिट दोनों एंगल्स का, जो इंटीरियर में उसके अपोजिट एंगल्स हैं उनके सम के इक्वल होता है, इज इक्वल टू the sum of the two interior opposite angles. Let us verify it by the following activity. Draw a triangle ABC and extend BC to D. Trace out this triangle on another paper and cut off angle A and angle B and arrange these angles alongside by keeping the vertex of each on C as shown in the figure. इसने क्या किया, ABC में BC को D तक क्या किया, एक्सटेंड किया, और एंगल A और एंगल B के कटआउट्स लिए. कटआउट्स लेने के बाद उसको एंगल C पे क्या किया, एडजस्ट किया. तो हमने देखा जो हमारा एंगल C का मेजर है वो हमारे एंगल A और एंगल B का मेजर है. इट इज ऑब्जर्व दैट एंगल ACD इज इक्वल्स टू एंगल A प्लस एंगल B. Hence, exterior angle of a triangle is equal to the sum of the two interior opposite angles. Now, let us prove it theoretically. Given क्या है, consider a triangle ABC in which BC is produced to D. To prove angle ACD is equals to angle A plus angle B. Construction करेंगे. Through C, draw a ray CE parallel to AB. Proof कैसे करेंगे, देखो, सिंस CE is parallel to AB and AC is a transversal. CE यहाँ पे हमने क्या किया, CE हमारा पैरेलल है किसके, CE is parallel to AB. CE हमारी पैरेलल है AB के, और हमारी जो AC है, AC इसकी क्या है, ट्रांसवर्सल. AC हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल है. तो हमारा एंगल जो 1 है वो एंगल किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल, राइट. तो अगेन एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2. क्यों, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स है. अगेन AB इज पैरेलल टू CE, AB इज पैरेलल टू CE, और हम क्या करेंगे, BC को इसको क्या कर देंगे, BD इज अ ट्रांसवर्सल. यहाँ पे हमारा क्या है, BD ट्रांसवर्सल है, और AB ये क्या है, ये हमारे दोनों पैरेलल. सो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4. क्या है ये, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 4 क्या बने, हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ऑन एडिंग 1 and 2 वी हैव, हमने 1 और 2 को ऐड किया, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4. एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4. जो हमारा एंगल 2 प्लस 4 है वो हमारा क्या बना, एंगल ACD. हमारा एंगल क्या बना, एंगल ACD. और एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल ACD. और एंगल 1 क्या है, एंगल A, और एंगल 3 क्या है, एंगल B. Hence proved angle A plus angle B is equals to angle ACD. Hence, exterior angle of a triangle is equal to the sum of the two interior opposite angles. Now, example. Find the marked angles in the given figure. हमें क्या करने हैं, जो जो एंगल्स मार्क्ड हैं उनको मेजर निकालना है. देखते हैं सॉल्यूशन इसका. एंगल ACD इज इक्वल्स टू एंगल ABC प्लस एंगल BAC, दैट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. ठीक है, इसमें क्या कहा है, एंगल ACD जो हमारा एंगल 3 है दैट इज इक्वल्स टू एंगल A प्लस एंगल B. क्या है ये हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू 35 प्लस 50 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 85 डिग्री. क्या बन गया ये, 85 डिग्री. नाउ इन ट्रायंगल ECD,
अब हमारा ई, सी और डी, ई सी डी में डी हमारा 45 डिग्री, एंगल 3 अभी हमने निकाला 85 डिग्री, तो एंगल 2 हम निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के। सो एंगल ई सी डी प्लस एंगल ई डी सी प्लस एंगल सी ई डी दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल 3 प्लस एंगल कितना है EDC 45 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 3 अभी हमने निकाला है 85 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 85 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज 130 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमें क्या निकालना है एंगल 2। एंगल 2 निकालेंगे 180 डिग्री 130 को अपोजिट साइड लेके जाएंगे, यहाँ ये प्लस हो रहा है, अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो हमारा आ गया एंगल 2 कितना 50 डिग्री, राइट। उसके बाद हमारा कौन सा रह गया एंगल 1। एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या बना रहा है लीनियर पेयर। नाउ एंगल ACB प्लस एंगल ACD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये दोनों एंगल्स ये हमारे क्या बना रहे हैं यहाँ पे लीनियर पेयर। क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर, जो 180 डिग्री होता है। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 3 अभी हमने निकाला है 85 डिग्री, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री इज इक्वल्स टू 95 डिग्री। हेंस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 95 डिग्री, एंगल 2 इज इक्वल्स टू 50 डिग्री एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू 85 डिग्री। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, the sides BC, CA and AB of a triangle ABC are produced in order forming exterior angles, angle ACD, angle BAE and angle CBF. Show that angle ACD plus angle BAE plus angle CBF is equals to 360 degree. Solution करते हैं इसका। Let the angle be marked as shown then. हमने क्या किया, इसमें हमारा AB को F तक, BC को D तक और AC को कहाँ तक E तक बढ़ाया गया है। तो हमारे एक्सटीरियर एंगल बने दिस एंड दिस, X, Y एंड Z। इंटीरियर एंगल्स को हमने मार्क किया एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 3। तो हमारा एंगल X, अभी हम क्या लेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एंगल X इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एंगल Y इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 3, अपोजिट एंगल्स लेंगे ना, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, राइट। तो एंगल Y के अपोजिट क्या है एंगल 1 प्लस एंगल 3 दैट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। और हमारा एंगल Z के अपोजिट क्या है एंगल 2 प्लस एंगल 3 दैट इज ऑल्सो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। नाउ हम तीनों को हम क्या कर देंगे ऐड। ऑन एडिंग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन वी गेट, क्या माना हमने, क्या पाया, एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3। सारे एंगल्स 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स एंगल 1, 2 टाइम्स एंगल 2 और 2 टाइम्स एंगल 3। सो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। और एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 3 क्या है हमारी, ये क्या है इंटीरियर एंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। जब हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि सभी कितने टाइम्स हैं 2 टाइम्स, दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था। सो एंगल ACD प्लस एंगल CBF प्लस एंगल BAE इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, in the given figure, if line segment PQ and RS intersect at point T such that angle PRT is equals to 40 degree, angle RPT is equals to 95 degree and angle TSQ is equal to 75 degree. Find angle SQT. Solution देखते हैं इसका। यहाँ पे क्या है, हमारी जो RT है वो S तक प्रोड्यूस्ड है और ये हमारी क्या है, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है।
तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दिस एंगल PTS इज इक्वल टू एंगल TPR और PRT, राइट। तो साइड RT ऑफ triangle PRT is produced to S. So angle PTS is equals to angle TPR plus angle PRT. क्या है ये हमारे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इक्वल रहेंगे। तो एंगल PTS कितना आ गया हमारा एंगल TPR कितना है 95 डिग्री और एंगल PRT कितना है 45 डिग्री। दोनों को ऐड किया कितना हुआ 135 डिग्री। साइड QT ऑफ ट्रायंगल SQT, हमारा एक छोटा ट्रायंगल बन रहा है तो यहाँ पे QT, जो हमारा QT है वो प्रोड्यूस हुआ है कहाँ तक P तक, इज प्रोड्यूस टू P। सो एंगल PTS इज इक्वल्स टू एंगल TSQ प्लस एंगल SQT, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अगेन। तो PTS कितना है 135 डिग्री इज इक्वल्स टू 75 डिग्री TSQ प्लस एंगल SQT हमें निकालना है। तो SQT इज इक्वल्स टू 135 डिग्री माइनस 75 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। हेंस यही हमें क्या करना था, निकालना था। एंगल SQT इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो बच्चों इसी तरह से एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। Now, next topic is triangle inequality property. The sum of the length of any two sides of a triangle is greater than the third side. Let us verify this property by the following activity. Draw three triangles of different shapes and sizes and label each triangle as A, B, C. ये हमने तीन ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ की, डिफरेंट स्टाइल की, और तीनों को क्या नाम दिया A, B, C. In each case, measure the side AB, BC and CA and find the sum of AB plus BC, BC plus CA and CA plus AB. In each case, you will observe that AB plus BC is greater than CA, BC plus CA is greater than AB and CA plus AB is greater than BC. Hence, we can say that the sum of the length of any two sides of a triangle is greater than the third side. Note that. From the above property, another important result can be stated as the difference of any two sides of a triangle is less than the third side. Example से करते हैं इसको. The length of two sides of a triangle are 4 cm and 7 cm. What would be the possible length of the third side? Solution देखते हैं इसका. We know that the sum of two sides of a triangle is always greater than the third side. Therefore, the third side has to be less than the sum of the two sides. So, the third side is less than 11 cm. That is 4 cm plus 7 cm. दोनों साइड्स का टोटल कितना है 11 सेंटीमीटर. सो थर्ड साइड हमारी क्या होगी 11 सेंटीमीटर से छोटी. बट द थर्ड साइड कैन नॉट बी लेस देन द डिफरेंस ऑफ टू साइड. लेकिन वो थर्ड साइड दोनों साइड्स के डिफरेंस से कम नहीं होनी चाहिए. सो द थर्ड साइड हैज टू बी मोर देन 3 सेंटीमीटर. दैट इज 7 सेंटीमीटर माइनस 4 सेंटीमीटर. Hence, the possible length of the third side could be greater than 3 cm, 3 cm से ज़्यादा and less than 11 cm. But 11 cm से क्या रहेगी, कम रहेगी. Now, next example. Is it possible to draw a triangle with the following sides? A part 1.5 cm, 4 cm, 2.5 cm. B 4 cm, 5 cm, 3 cm. सॉल्यूशन करते हैं इसका. A part. Here we have 1.5 cm plus 4 cm. That is greater than 2.5 cm. 4 cm plus 2.5 cm that is greater than 1.5 cm. Means इन दो साइड्स का सम थर्ड साइड से ज़्यादा है. फिर हमने साइड चेंज की, ये दो साइड ली,
उसका सम भी हमारे थर्ड साइड से ज्यादा है। फिर हमने ये दो साइड ली, दैट इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। Thus, the sum of any two sides is not greater than the third side. Hence, it is not possible to draw a triangle whose sides are 2.5 centimeter, 1.5 centimeter and 4 centimeter. क्यों? जब हमने अदर पेयर बनाया तो वहां पे क्या आई? साइड इक्वल आई। Now, B part. Here we have 4 centimeter plus 5 centimeter, that is greater than 3 centimeter. 5 centimeter plus 3 centimeter, that is greater than 4 centimeter. 3 centimeter plus 4 centimeter, that is greater than 5 centimeter. अब 3 डिफरेंट पेयर बनाए और तीनों ही सिचुएशन में दो साइड्स का सम थर्ड साइड से ज्यादा है। Thus, the sum of any two side is greater than the third side. Hence, it is possible to draw a triangle whose sides are 4 centimeter, 5 centimeter and 3 centimeter. Now, next example. AM is the median of triangle ABC. Is AB plus BC plus CA is greater than 2AM. That means तीनों साइड्स का टोटल ज्यादा होगा मीडियन के डबल से। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। इन ट्रायंगल ABM हमने कौन सी ली? ट्रायंगल ABM दो ट्रायंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी ना। वी हैव AB plus BM is greater than AM. ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, इसमें हमने क्या लिया? AB plus BM is greater than AM. इन ट्रायंगल AMC, अब हमने दूसरी ट्रायंगल ली AMC. वी हैव, इसमें भी हम क्या लेंगे? AC plus MC is greater than AM. ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, हम दोनों को ऐड करेंगे। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट AB plus BM plus CA plus MC is greater than AM plus AM. हमने इन दोनों को एक साइड प्लस किया और इन दोनों को एक साइड, दैट इज ग्रेटर देन AM plus AM. AB plus BM plus CA plus MC. इसमें देखो AB एज इट इज हमारी क्या है? साइड है, और हमारी BM plus MC, BM plus MC मिलकर क्या बन रही है? BC. ये BC बन रही है दोनों मिलकर, और CA हमारी ऑलरेडी है, CA हमारी ऑलरेडी ये है, दैट इज ग्रेटर देन 2AM. सो AB प्लस CA प्लस BC इज ग्रेटर देन डबल AM, 2 times AM. Hence, AB plus BC plus CA is greater than 2AM. Now, next example. ABCD is a quadrilateral. Is AB plus BC plus CD plus DA is greater than AC plus BD. Solution देखते हैं इसका। In triangle ABD we have, in triangle ABD, ABD में हमारी जो ABD में A, B और D, ABD में हमारी जो ट्रायंगल है दैट इज DA plus AB is greater than BD, is greater than BD. क्या है ये? हमारी इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी कि दो साइड्स का सम थर्ड साइड से ज्यादा होगा। सिमिलरली इन ट्रायंगल BCD, BC plus CD is greater than BD. On adding 1 and 2 we get, हमने दोनों को ऐड किया, DA plus AB plus BC plus CD is greater than BD plus BD. AB plus BC plus CD plus DA that is greater than double BD. Third equation, similarly on taking triangle ACB and triangle DCA we get AB plus BC plus CD plus DA is greater than AC. Fourth equation, यहाँ पे हमारी थर्ड इक्वेशन एक प्रूव हुई, जिस तरह से हमने दो ट्रायंगल ली फिर अनदर 2 ट्रायंगल्स ली हमने, वहां पे हमारी ये फोर्थ इक्वेशन प्रूव हुई। ऑन एडिंग इक्वेशन 3 and 4 वी गेट डबल, अब 2 टाइम्स हो गया, देखो AB AB, BC BC, CD CD, DA DA, तो 2 टाइम्स हमारा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन, ये भी हमारा यहाँ पे क्या हो गया 2 टाइम्स BD एंड 2 टाइम्स AC, राइट, 2 टाइम्स AC प्लस BD, 2 टाइम्स से 2 टाइम्स क्या हो गया कैंसिल, और AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC प्लस BD.
Hence, AB plus BC plus CD plus DA is greater than AC plus BD. तो बच्चों इसी तरह से एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पाइथागोरस थ्योरम. This theorem is named after an eminent Greek philosopher and mathematician, Pythagoras. He gave a wonderful relation between the lengths of the sides of a right-angled triangle. In a right-angled triangle, one angle of a triangle is right angle and the other two angles are acute angles. The side opposite to the right angle is called hypotenuse, which is the longest side of right triangle, and the other two sides are called its base and perpendicular. The base and the perpendicular can also be called the legs of a right angled triangle. He states that for any right angled triangle, the square of the hypotenuse is equals to the sum of the square of other two sides. If triangle ABC is a right triangle at C. यहाँ पे हमें ट्राइंगल दे रखी है ABC जो हमारी C पे क्या है, राइट एंगल है. सो दैट AB इज द हाइपोटेन्यूज जिस पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है. 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना, इसके अपोजिट साइड जो साइड होती है वो हमारी होती है हाइपोटेन्यूज. सो AB is the hypotenuse and AC and BC are the sides of the right triangle. Then क्या बोला है, AB स्क्वायर जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स. तो अदर टू साइड्स क्या हमारी, BC स्क्वायर बेस और ये हमारा परपेंडिकुलर CA स्क्वायर. सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. और C square is equals to A square plus B square, where A is equals to BC, B is equal to CA and C is equals to AB. In order to verify the above stated theorem, we may perform the following activity. Draw any three right triangles, say T1, T2 and T3. Label each as triangle ABC with sides A, B, C and angle C as the right angle. हमने यहाँ पे 3 ट्राइंगल्स ली, T1, T2 एंड T3. तीनों को क्या लिया, A, B, C इनकी साइड्स ली और एंगल C पे हमने क्या लिया, राइट एंगल लिया. इन ईच केस मेजर द साइड्स A, B एंड C. इवेलुएट A स्क्वायर, B स्क्वायर एंड C स्क्वायर एंड टेबुलेट द रिजल्ट एज फॉलोज. राइट ट्राइंगल मेजरमेंट्स, स्क्वायर ऑफ A, B, C, सम ऑफ A स्क्वायर एंड B स्क्वायर. ये हमने 3 ट्राइंगल्स हैं, इनको आप क्या करेंगे, मेजर करेंगे. T1 का मेजरमेंट लेंगे, A कितना है, B कितना है, C कितना है, उनका स्क्वायर निकालेंगे और A स्क्वायर और B स्क्वायर निकालेंगे. ये एक्टिविटी आप खुद परफॉर्म करेंगे और देखेंगे क्या रिलेशन है. इफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल्स टू C स्क्वायर, इट वेरीफाइज दैट इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, अदरवाइज नोट. अगर हमें ये सारे मेजरमेंट करने के बाद हमारा जो रिजल्ट है वो ये आता है कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर, दैट मीन्स वो ट्राइंगल हमारी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, अदरवाइज नहीं है. नाउ नेक्स्ट इज कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. If the square of the longest side of a triangle is equal to the sum of the square of other two sides, then the triangle will be right angled triangle and the angle opposite to the longest side is a right angle. Let ABC be the sides of triangle ABC and A is equals to 3 cm, B is equals to 4 cm and C is equals to 5 cm. तो हम लगाते हैं ये रिलेशन, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल्स टू C स्क्वायर. A स्क्वायर इज 3 cm स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज 4 cm स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर इज इक्वल टू 5 cm स्क्वायर. हमने स्क्वायर किया, 3 cm स्क्वायर का 9 cm, 4 का हमारा 16 और 5 का 25 cm. ऐड किया तो क्या देखा हमने, 25 cm इज इक्वल्स टू 25 cm. ये हमारा प्रूव हो गया. हैंस it is a right angle triangle where the angle opposite to side C is the right angle. Thus the converse of Pythagoras theorem is true. Now next is Pythagorean triplet. 3 positive numbers are said to form
a Pythagorean triplet if the square of the largest number is equal to the sum of the squares of other two numbers. For examples, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 12, 35, 37 etc. are Pythagorean triplets. इनमें से जो longest सबसे बड़ा जो नंबर है, लार्जेस्ट नंबर है, उसका स्क्वायर बाकी के दोनों नंबर्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है. एग्जाम्पल से देखते हैं इसको. Gia walks 6 km towards east and then 8 km towards north. How far is she from her starting point? Solution देखते हैं इसका. Gia walks 6 km towards east. 6 किलोमीटर वो ईस्ट की तरफ जाती है, देन 8 किलोमीटर वो नॉर्थ की तरफ मुड़ जाती है. तो अभी जहां पे जिया है वहां से हमारा उसका स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूर है. लेट ओ बी द इनिशियल पोजीशन ऑफ जिया. हम क्या ले लेते हैं कि ओ उसकी इनिशियल पोजीशन है. लेट शी कवर्ड ओ ए इज इक्वल्स टू 6 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड देन ए बी इज इक्वल्स टू 8 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ. फाइनली शी रीचेज ऑन पॉइंट बी, ज्वाइन ओ बी. हमने ओ बी को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया. नाउ इन राइट ट्राइंगल ओ ए बी वी हैव ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर. क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है, राइट एंगल है और इसकी अपोजिट साइड क्या है हमारी, हाइपोटेन्यूज. तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. ओ ए स्क्वायर, ओ ए इज 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर स्क्वायर प्लस ए बी इज 8 किलोमीटर, सो 8 किलोमीटर स्क्वायर. 6 किलोमीटर स्क्वायर, 6 का स्क्वायर इज 36 किलोमीटर स्क्वायर एंड 8 का स्क्वायर इज 64 किलोमीटर स्क्वायर. दोनों को ऐड किया दैट इज 100 किलोमीटर स्क्वायर. दैट इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर. तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू दोनों का स्क्वायर, 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर. स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो हमारा ओ बी कितना आ गया, 10 किलोमीटर. हेंस जिया इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल. A tree is broken at a height of 5 meters from the ground and its top touches the ground at a distance of 12 meters from the base of the tree. Find the original height of the tree. किस तरह से है देखो, एक ट्री है वो इतना लंबा है यहां तक, ठीक है, और वो यहां से 5 क्या है ये हमारा 5 मीटर से उसने वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया. और ये वाला जो पोर्शन है वो नीचे टच हुआ बेस से कितनी दूर, बेस से कितनी दूर हुआ है हमारा 12 मीटर. यहाँ पे ये 12 मीटर दूर क्या हुआ है, इससे ये टच हुआ है. तो हमारे टोटल क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है किसकी, ट्री की. तो 5 मीटर में ये जो ब्रेक होके यहाँ तक टच हुआ है इसको भी ऐड कर देंगे तो टोटल हाइट आ जाएगी. तो बन गया हमारा क्या, राइट एंगल बन गई, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट. तो जिसमें हमारा ये क्या है 90 डिग्री का एंगल है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये परपेंडिकुलर. सॉल्यूशन देखते हैं इसका. लेट सी डी बी द हाइट ऑफ द ट्री एंड ट्री इज ब्रोकन एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. सो ए डी इज इक्वल्स टू ए बी, ए सी इज इक्वल्स टू 5 मीटर एंड बी सी इज इक्वल्स टू 12 मीटर. दैट इज गिवन. इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. यहाँ पे ए बी स्क्वायर जो हमारा हाइपोटेन्यूज है दैट इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम. ए सी इज 5 मीटर एंड बी सी इज 12 मीटर. तो ए सी की जगह हमने रखा 5 और बी सी की जगह रखा 12. 5 का स्क्वायर इज 25 मीटर स्क्वायर एंड 12 का इज 144 मीटर स्क्वायर. सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 मीटर स्क्वायर. राइट, 169 किसका है, 13 का स्क्वायर है. तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल. सो ए बी इज इक्वल्स टू 13 मीटर. तो हाइपोटेन्यूज कितना आया या ब्रोकन पार्ट कितना आया, 13 मीटर. हाइट ऑफ द ट्री ए बी प्लस ए सी, दोनों को हमने क्या कर दिया, ए बी और ए सी. 5 मीटर से वो क्या हुआ था, ब्रेक हुआ था, ब्रेक होके यहाँ गया. तो ये हमारा क्या हो गया, ए बी प्लस ए सी, दैट इज द हाइट ऑफ द ट्री. 13 meter plus 5 meter is equals to 18 meter. Hence, the original height of the tree is 18 meter. Now, next example. Two poles 25 meter and 40 meter high stand on a plain ground.
If their feet are 20 meter apart, find the distance between their tops. यहाँ पे दो पोल दे रखे हैं, एक 40 मीटर है जिसकी हाइट और एक 25 मीटर, और दोनों के बीच में 20 मीटर का क्या है, गैप है. हमें क्या निकालना है, दोनों के टॉप का डिस्टेंस. ये 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर रहेगा, राइट. सॉल्यूशन देखते हैं इसका. लेट AB एंड CD रिप्रेजेंट द गिवन पोल्स, ज्वाइन BD. हमने क्या किया, BD को मिला दिया दोनों के टॉप्स को. फ्रॉम D ड्रॉ DE परपेंडिकुलर टू AB. DE परपेंडिकुलर टू AB. ये हमने DE को परपेंडिकुलर किया किस पे, AB पे. देन DE इज इक्वल्स टू CA इज इक्वल्स टू 20 मीटर. तो हमारा DE भी कितना हो गया, CA के इक्वल, दैट इज 20 मीटर. BE हमें क्या निकालना है, B, सो दैट ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए. BE निकालने के लिए टोटल कितनी है हाइट, 40 मीटर, ठीक है, और ये कितनी है 25, तो ये भी कितनी होगी यहाँ तक 25. तो 40 मीटर में से 25 मीटर को माइनस करेंगे. BE इज इक्वल्स टू AB माइनस AE, दैट इज इक्वल्स टू AB माइनस CD, बिकॉज AE इज इक्वल्स टू CD. सो 40 मीटर माइनस 25 मीटर इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा, 15 मीटर. नाउ ट्रायंगल BED, ऊपर वाली ट्रायंगल ले लेंगे, BED is a right angle triangle. According to Pythagoras theorem, BD square is equals to BE square plus DE square. ये हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, राइट. दैट इज इक्वल्स टू 15 मीटर स्क्वायर प्लस 20 मीटर स्क्वायर. कितना हो गया, 15 मीटर स्क्वायर दैट इज 225 मीटर स्क्वायर एंड 20 मीटर स्क्वायर इज 400 मीटर स्क्वायर. दोनों को टोटल किया 625 मीटर स्क्वायर, और BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625 हमारा किसका है, 25 मीटर का स्क्वायर. तो BD इज इक्वल्स टू 25 मीटर. Hence, the distance between their tops is 25 meter. Now, next example. The diagonals of a rhombus measure 16 centimeter and 30 centimeter. Find its parameter. Solution करते हैं इसका. Let ABCD is a rhombus and AC and BD are its diagonals. As we know that a rhombus has all sides equal and its diagonal bisect each other at right angle. Therefore, BO is equals to OD is equals to 15 centimeter. टोटल कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो 15 ये 16 है तो 8 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, और बीच में क्या बन रहा है ये 90 डिग्री का एंगल. BO is equal to OD is equals to 15 centimeter. AO is equal to OC is equals to 8 centimeter. Angle AOB is equals to angle BOC is equals to angle COD is equals to angle DOA is equal to 90 degree. Now using Pythagoras theorem in triangle AOB, AB square is equals to OA square plus OB square. AB square AOB में AB square is equals to OA square plus OB square is equals to 8 centimeter square plus 15 centimeter square. 8 centimeter square is 64 centimeter square plus 225 centimeter square, that is equals to 289 centimeter square, and 289 is the square of 17 centimeter. So AB is equals to 17 centimeter. AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD is equal to 17 centimeter. Hence, perimeter of rhombus is equals to 4 multiplied by side is equals to 4 multiplied by 17 centimeter, that is equals to 68 centimeter. तो बच्चों इसी तरह से एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. आई होप आपको चैप्टर समझ आया. इसकी रिवीजन आप खुद कीजिए.